میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ دوستوں کو سیر کرواؤں گا قازقستان کی، اور سیر کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو قازقستان کی تاریخ اور دلچسپ و عجیب باتوں سے بھی آگاہ کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہے۔ دوستو، قازقستان اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ قازقستان کا کل رقبہ 27,24,900 مربع کلومیٹر ہے۔ قازقستان ایک زمانے تک دنیا کی ایک طاقتور مملکت سوویت یونین کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ قازقستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے 3.5 گنا بڑا ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے کم گنجان آبادی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ 1,80,00,000 افراد کی آبادی کے ساتھ قازقستان دنیا بھر میں 64ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ قازقستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کا کل رقبہ مغربی یورپ کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا خشکی سے محصور ملک بھی ہے۔ قازقستان کے محل وقوع کی بات کریں تو اس کے مشرق میں چین، شمال اور مغرب میں روس، جنوب مشرق میں کرغیزستان، جنوب میں ازبکستان اور ترکمانستان، اور جنوب مغرب میں بحیرہ قزوین واقع ہے، جبکہ مشرقی سائیڈ میں ایک چھوٹی سی سرحد سمندر کے ذریعے منگولیا سے بھی لگتی ہے۔ قازقستان کی آبادی میں 70.2% مسلمان، 26.3% مسیحی لوگ، 0.1% دیگر مذاہب کے ماننے والے، جبکہ باقی 3.4% آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ یوں تو قازقستان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، لیکن اگر ہم جدید زندگی کے ادوار کی بات کریں تو یہاں پر 11ویں صدی عیسوی میں کومان لوگوں نے اپنے خیمے لگائے۔ کومان لسانی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن سب زبانوں میں نام کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی سنہرے بالوں والی قوم۔ کومان کے بعد یہاں پر قپچاق لوگوں نے بستیاں بسانا شروع کی۔ جب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارا بھی کوئی حکمران ہونا چاہیے اور بعد میں آنے والے قبیلے ہم پر غالب نہ آ جائیں، اس ڈر سے قپچاق اور کومان لوگوں نے اتفاق سے ایک ریاست قائم کی جسے قپچاق کومان وفاق کہا جاتا ہے۔ یہ 11ویں صدی سے 12ویں صدی تک قائم رہنے والی ریاست تھی۔ چنگیز خان کے جانشینوں نے یعنی سلطنت منگول نے اپنی سرحدیں پھیلاتے ہوئے قپچاق کومان وفاق کا نام ختم کرتے ہوئے اسے سلطنت منگولیا کا حصہ بنا دیا، اور آنے والے 300 سالوں تک اس خطے پر حکومت کی۔ 1456 سے 1847 تک قائم ہونے والی ایک سلطنت جسے خانیت قازق کہا جاتا ہے اس خطے پر قائم ہوئی۔ آپ کی مزید اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ منگولیا سلطنت اپنے آغاز میں ایک غیر مسلم ریاست تھی، مگر یہ اپنے عروج کے دنوں سے پہلے ہی مسلم ہو چکی تھی، یعنی منگول سلطنت کا جب انجام ہوا تھا تو تقریباً اسلام ہی اس سلطنت میں پھیل چکا تھا۔ خانیت قازق کے اس عظیم دور کو بھی اسلامی دور کہا جاتا ہے، یعنی یہ سلطنت بھی ایک اسلامی سلطنت تھی، مگر اس سلطنت کے انجام کے بعد کچھ دہائیاں کوئی نئی حکومت قائم نہ ہو سکی، اور پھر 1867 کو رشین ترکمانستان کا قیام عمل میں آیا، جس کا حصہ یہ خطہ بھی بنا۔ اس اتحادی حکومت کا بھی 1918 میں خاتمہ ہو گیا، جب دنیا جنگ عظیم اول کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ 1918 سے قازقستان کے ان علاقوں پر جہاں پر اب قازقستان موجود ہے ایک آزاد الاش خود مختار ریاست بنائی گئی جو ایک قازق ریاست تھی۔
1925 में इस रियासत का भी खात्मा हुआ और एक नई रियासत कायम हुई जो सोवियत यूनियन के इश्तराक से वजूद में आई थी, और इस रियासत का नाम काजिक खुद मुख्तार सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था, जो 1936 तक कायम रही और फिर इस रियासत की खुद मुख्तारी को खत्म करते हुए नया नाम काजिक सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था। ये रियासत 1936 से 1991 तक कायम रही। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद काजिकिस्तान सबसे आखिर में आजादी पाने वाला मुल्क था। 16 दिसंबर 1991 को काजिकिस्तान ने रूस, जिसका पुराना नाम सोवियत यूनियन था, से आजादी का ऐलान कर दिया और कुछ ही दिनों बाद 25 दिसंबर 1991 को मुकम्मल आजादी हासिल करते हुए इस नए मुल्क की बुनियाद रखी। सोवियत यूनियन के इत्तेहाद में नूर सुल्तान नजरबायेव काजिकिस्तान के रहनुमा थे और आज भी ये काजिकिस्तान के सदर के ओहदे पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। काजिकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो आस्ताना काजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1998 में दारुल हुकूमत बनाया गया था, जब इसका नाम आकमूला था। आस्ताना से पहले आलमाते मुल्क की दारुल हुकूमत था। आलमाते मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस शहर की आबादी 35 लाख अफराद के करीब है। इस शहर को काजिकिस्तान का इक्तसादी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। आलमे शहर में बहुत ज्यादा पार्क मौजूद हैं, इसीलिए इसे पार्कों का शहर भी कहा जाता है। काजिकिस्तान में मुसलमानों की ज्यादा तादाद सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है। मुल्क की आबादी का 66.48% हिस्सा काजिक लोगों, 20% रूसी, जबकि बाकी दीगर कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से है। काजिकिस्तान का कालिंग कोड +7 है। काजकी और रूसी काजिकिस्तान की सरकारी जुबानें हैं, जबकि दीगर बोली जाने वाली जुबानें अमन, अज़बेक, तातार, करगैज, यूक्राइनी और दीगर जुबानें शामिल हैं। काजकी जुबान खुद भी एक तुर्किश जुबान से निकली हुई जुबान है, जिसमें कुछ अरबी के हरूफ भी शामिल हो गए हैं और कुछ रूसी भी, जो कुछ तुर्किश बोलने वालों को समझ आती है। अंग्रेजी जदीद और दूसरी जुबान के तौर पर भी बोली जाती है। पहले लोग खाना बदोशों की सी जिंदगी बसर करते थे और तालीम की तरफ कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, मगर सोवियत यूनियन के दौर में और आजादी के बाद तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी, जिसके बाद शरह तालीम बढ़ती 99.5% तक पहुंच चुकी है। 11वीं सदी ईस्वी में काजिकिस्तान की इस सरजमीन पर ज्यादा आबादी का दाखिला शुरू हुआ था, जबकि इस्लाम काजिकिस्तान में 8वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले लोगों के जरिए पहुंच गया था। फुटबॉल काजिकिस्तान में काफी शौक से खेला जाने वाला खेल है। फुटबॉल के अलावा आइस हॉकी, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, पोलो, स्पीड स्केटिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग दीगर और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। काजिकिस्तान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, जो अब सियाहों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। काजिकिस्तान का डोमेन नेम .kz है। काजिकिस्तान की करेंसी को काजिकिस्तानी तिंगे कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3 आ जाएंगे, यानी ये करेंसी पाकिस्तानी रुपए से कमतर समझी जाती है। काजिकिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। काजिकिस्तान में पहले सियाहत की तरफ कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, बल्कि तेल, ज़राअत और दीगर कुदरती वसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, मगर पिछले कुछ सालों से अवाम के बढ़ते हुए रुझान से काजिकिस्तान की सरजमीन भी गैर मुल्कियों से भरने लगी है। काजिकिस्तान हुकूमत ने 48 ममालिक को वीजा फ्री करते हुए इस बात का इजहार किया है कि हम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहते हैं। तकरीबन 3,20,000 अफराद ने 2016 में काजिकिस्तान का सफर किया था और अंदाजा लगाया जाता है कि यह तादाद अब मजीद बढ़ रही है। कदीम कज़ाकों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले घुड़सवारी इन्हीं लोगों ने शुरू की थी, जो खाना बदोश थे और एक जगह से दूसरी जगह
घोड़ों के जरिए मुंतकिल होते थे। कज़ाक लोगों के बारे में मशहूर है कि ये मर्द गैर मर्दों को तो बड़े प्यार और दोनों हाथों से सलाम करते हैं, लेकिन ये गैर औरतों से एक हाथ से भी सलाम करना अच्छा नहीं समझते। 1989 में काज़ाकिस्तान के क़याम से पहले मुल्क भर में ज़राअत की अशिया की यानी खाने पीने की अशिया की कमी वाक़ई हो गई थी, जिसके बाद बेशुमार बतखों को खुराक की कमी पूरी करने के लिए ज़िबा किया जाता रहा था। काज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनबंद मुल्क है, मगर फिर भी काज़ाकिस्तान की अपनी नेवी है जो किसी भी वक्त में काम आ सकती है। अगर कभी जंग का सामना हुआ तो इस नेवी से भी मदद ली जा सकती है। बलकश की झील काज़ाकिस्तान की सबसे साफ शफाफ और सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा भी बेशुमार झीलें हैं, मगर यह झील आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। काज़ाकिस्तान लंबाई में इतना लंबा है जितना लंदन से इस्तांबुल दूर है। काज़ाकिस्तान में तेल के 19 किलोमीटर रकबे पर ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो इसे बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर मुमालिक की सफ में ला खड़ा करेंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि सेब का सबसे पहला दरख्त भी काज़ाकिस्तान के शहर आलमाते में लगाया गया था। इस शहर में बेशुमार सेबों के बागात हैं। इस आलमाते लफ्ज का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब भी सेबों वाली जगह है। अमरीकी औरतों की तरह काज़ाकिस्तान की औरतों को भी 26 अगस्त 1920 में वोट डालने के हकूक मिल गए थे। बाज की मदद से शिकार करना एक खेल के तौर पर आज भी काज़ाकिस्तान में अमीर और शौक रखने वाले लोगों के दरमियान मकबूल है, जो सिखाए गए बाज की मदद से खरगोश, लोमड़ी और दीगर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। बर्फानी चीता काज़ाकिस्तान के बर्फानी पहाड़ी इलाकों में आज भी बकसरत पाया जाता है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे पहले अमेरिका ने काज़ाकिस्तान को एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर कबूल किया था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ादी के अगले साल 2 मार्च 1992 को काज़ाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। सुनहरी बाज काज़ाकिस्तान की एक अलामत को ज़ाहिर करता है। ये बाज काज़ाकिस्तान के अलावा कनाडा और अमेरिका में भी पाया जाता है। ये बाज की अलामत काज़ाकिस्तानियों के ताकत और जज्बे को ज़ाहिर करती है। काज़ाकिस्तान के परचम पर सूरज की बनाई गई 32 किरणें मुल्क की तरक्की और खुशहाली को ज़ाहिर करती हैं। दोस्तों, ये थी काज़ाकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो, मगर इस वीडियो का भी एक हिस्सा अभी बाकी है, जिसमें काज़ाकिस्तान के तफरीही मुकामात, वीज़े के हसूल और अगर कोई बात मैं गलती से बताना भूल गया हूँ तो वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।